Hello and warm welcome to Amjadali RJ channel. Japan, often known as the land of rising sun, is a fascinating country where ancient traditions blend seamlessly with cutting edge technology. From its rich cultural heritage and serene temples to its bustling cities and global innovations, Japan continues to inspire and influence the world. Today, we are honored to explore more about this remarkable nation through the eyes of our special guest. I am completely excited and overwhelmed to have the company of a young scientist born in Pakistan and now serving Japan with pride. Sure. Without further ado, let me introduce to you our distinguished guest, Dr. Mohammad Shehbaz, Kochi University of Technology, Japan, PhD researcher in the field of nanotechnology and wearable sensing. Thanks indeed, and great to have you, Dr. Sahab. How are you? I'm fine, Alhamdulillah, all good, and thank you so much for inviting me. It's been a pleasure to see you again. And you have already introduced, and I would like to introduce a bit more about myself. And as my name is Mohammad Shehbaz, and currently I'm doing my PhD at Kochi University of Technology, and my field of research is nanotechnology and wearable sensing. So when it comes to nanotechnology, so it clearly mentions that the research that have been is happening in the very nanoscale. Okay, and the other thing regarding the wearable sensing is as we all know that in current technology advancement, wearable sensing has been playing a crucial role, and it has been developed into so many applications when it comes to sensing. For example, smart gloves. We have the for the medical patients when we need to check the several parameters of a patient, so it has been used in the wearable sensing has been used in so many applications. So what I'm doing right now is I'm developing conductive fabrics. I'm just using a normal cotton fabric, and then I apply a special material which is called carbon nanotubes. Hmm. So what I do is simply deposit the carbon nanotube ink on the top of the cotton's surface to make the Hmm. cotton as a conductive fabric. Usually, a simple Hmm. cotton fabric will not pass electricity. So, if we want to make a simple cotton into a conductive fabric, so we have to we have to coat it with some material which can allow it to conduct electricity. So, successfully, I have developed the conductive fabric with a very, very good electrical conductivity. And right now, I'm in the phase of developing the sensor, and it's in the progress. And the application is the smart glove, and also the ankle detection and the swallow detection. So, for example, if I place sensor over here, and if I sip or if I drink any liquid, so when it passes through my throat, so the sensor would be able to detect the signal. If that so why I have chosen a drink, not something into a solid form, because if I want to check the sensitivity of my sensor, so liquid passes easily through your throat, so the change in the throat is very little. So, if your sensor can detect a very small amount of change in the throat movement, so it means that your sensor is working more accurately. So that's why, it is in the process of developing. So hopefully they will be developed very soon, and the next month I'm going to have my pre-defense. So in Japan, I'm not sure this practice is the same in the other countries, but in Japan, in particular in the Japanese universities, if when you are going to graduate, for example, I'm going to graduate in August next year. So before 1 year,
you have to give a pre-defense, not a final defense, a pre-defense where they will like check if you are eligible to get a degree after 1 year or not. So in some cases, there are some researchers in the past who were not able to pass their pre-defense, so they given them the 6 months more, that okay, after 6 months you need to do the pre-defense again, and after that, after pre-defense, you can apply for the final defense after 1 year. So in short, if you cannot pass your pre-defense, then your degree may be delayed either 6 months or 1 year. But we do believe, and we have got very firm belief that you will be through, and Yeah, you'll be inshallah. achieving Yes. whatever the target that And you have assigned. yes, and the most important thing is like when you are doing a PhD research. So the most difficult thing in the PhD research is to find an appropriate fabrication technique, because there are a lot of techniques and a lot of researchers have developed and these conductive fabrics to different fabrication techniques. So what I did in my lab, maybe I will not be able to say the exact name because it is not published yet. So Yes. what I did in my lab was something which is hmm, novel, have not been done previously, and due to that novelty I was able to get good results. Great. So yeah, So, and in the end of the day, PhD research is all about the novelty. So what how novel is your work? So alhamdulillah, by the grace of almighty, I was able to have the novelty, and I was able to get that novelty, and inshallah, it will be good research for the researchers who want to do the work in the future. Because there is a one misconception in the PhD. Like a lot of people think that and the PhDs are only working for themselves. Actually, not. And the PhD research is actually done to help the other researchers who want to do the same thing in the future. So, what we do will definitely help the industry as well as the future researchers. So yeah, if anybody who is watching or listening to this video, so and if you plan to do PhD, always aim to do something which will not help only you, but to the people who will do it in the at the later stages. bravo, bravo. This is a very, Yeah, very, very beautiful and wonderful thought on your part. And let me wish you all the very best in all aspects. So let's discuss thank you. about few extraordinary achievements and technological achievement, advancement by Japan in the recent times. सबसे पहले तो जब शहबाज, जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो उर्दू में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा स्विच करें मोड को। मैं पूछूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटरनेट स्पीड, फास्ट इनफ टू Oh डाउनलोड yes. ऑल नेटफ्लिक्स इन अंडर 1 सेकेंड। ये क्या रेवोल्यूशन है कि 1.02 पेटाबिट्स पर सेकेंड, व्हिच मींस अच्छा ओवर अ, 25,000 जीबी। ये क्या टेक्नोलॉजी है मैं जापान की? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि मैंने जब इस न्यूज़ को देखा और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा और मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि ये जो स्पीड है, अगर मैं इसको आम अल्फाजों में बताऊं तो ये 1,25,000 जीबी पर सेकंड है। ब्रेवो। तो आप ये सोचें कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग अ स्पीड ऑफ 1 जीबी पर सेकंड फॉर एग्जांपल, तो दैट्स ह्यूज। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1,25,000 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, बीइंग अ रिसर्चर इन जापान, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बता दूं कि जापान के अंदर एक फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। उस फिलॉसफी का नाम ये है कि आप आराम आराम से काम करें, ठीक है, आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप जो हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी आप 2 रातें सोए और तीसरी रात आप इनोवेशन लेके आ जाए। सही है।
तो यहाँ पे जापान के अंदर इवन इवन यू नो एज अ पीएचडी रिसर्चर आपकी कोशिश होती है कि आप जल्द से जल्द अपने काम को पब्लिश करें और आप बस मतलब पीएचडी जल्द से जल्द ख़त्म करें और आप आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे आपको एक उस तरह का प्रेशर फ्रॉम सुपरवाइजर्स नहीं है या प्रोफेसर्स के नहीं है कि आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है, नहीं। वो आपको पूरा मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे एंड दे वुड हाईली रेकमेंड यू कि आप अपने काम को जितना पॉलिश कर सकते हैं आप उसको पॉलिश करें। पॉलिश करने के बाद देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रोसेस है इसी की वजह से ये जो 1,25,000 जीबी पर सेकंड का फीट इन्होंने अचीव किया है, इसके पीछे मैं समझता हूं कि सालों की मेहनत होगी। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है और कि इन्होंने ये कैसे हासिल किया। तो मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की, उसको जब मैंने मज़ीद पढ़ा, तो इसमें जो सबसे हैरानकुन बात है वो हमारे आम सुनने वालों को शायद समझ में ना आए, तो मैं उसको उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं तो वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो ये होता है कि ये जो स्पीड आपने अचीव किया है ये कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, द इम्पोर्टेंट इज नॉट द स्पीड, द इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ फार इट विल गो। सो द डिस्टेंस इज आई थिंक 18,000 किलोमीटर। Yes. Wow, mind blowing. Yes, if I'm not wrong, yes, it's 18,000 किलोमीटर एंड मेरे नज़दीक ये आपका जो एआई है और आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, और फिर आप जिस तरह देख लें कि इस वक्त दुनिया में 6G पे काम हो रहा है। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं अमजद भाई, मेरी पिछले दिनों एक जापानीज रिसर्चर से बात हुई एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स 10G एंड 12G। ठीक है, More than twice. यस, तो अभी दुनिया में 6G जो है वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं हुआ। Yes, current is Yes, 5G. so yes, current is 5G, and they are right now in the process of doing experiments on, I think 11.5G है, it's around 12G। ठीक है, तो बेसिकली देखें जापान के अंदर एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं। जिस तरह मैंने आपको बोला है ना कि ये प्रोसेस की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने एक प्रोसेस है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से, वो कहते हैं ना कछुए की चाल, ये कछुए की चाल पे चलते हैं। सही है, और इनके मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बंदा जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, चाहे वो एक वाइट कॉलर जॉब हो, ठीक है, या चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, वो अपने हर काम को उतनी ही संजीदगी से लेते हैं कि जैसे एनी टाइम अगर उनका सुपरवाइजर वहां पे मौजूद है, उनका मैनेजर वहां पे मौजूद है या नहीं है, दे विल डू द वर्क के जैसा होना चाहिए। तो मैंने एक चीज यहाँ पे देखी। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट की जो बात है उस पे अब चीज ये है कि 18,000 किलोमीटर्स का फीट अचीव करना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर इस सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है तो आपकी जो, जिसको आप कहते हैं कि एआई जो है वो, और सबसे बड़ी चीज है डेटा साइंस। ठीक है, तो देखिए डेटा साइंस जो है एक्चुअली एआई को चलाने के लिए आपको आपको बैकबोन पे डेटा साइंस चाहिए। ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा चाहिए। तब आप खुद देखें कि बहुत सारा डेटा को अब प्रोसेस करना कितना आसान हो जाएगा इस स्पीड पे। आपके पास अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा, हाउ टू प्रोसेस इट, या इस डेटा का हमने क्या करना है, या इस डेटा को अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा आपके सर्वर में है और आपने उसको क्लाउड पे स्विच करना है, तो आप खुद देख लें कि इट्स लाइक द गेम ऑफ सेकंड्स नाउ।
कि आपके पास जितना मर्जी डेटा हो आप उसको करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मजीद, ये तो आपके सामने एक न्यूज़ आई है, मैं आपको एक और शायद मैंने अमजद भाई आपसे ये चीज़ पहले भी डिस्कस हुई है कि राइट नाउ जापान इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कम्युनिकेशन हम्म। एंड कम्युनिकेशन। देखें, पहले एक टाइम था व्हेन दे वर इनटू द डेवलपिंग ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हम्म। ठीक है, बट नाउ दे आर टू दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मेकिंग द कम्युनिकेशन चैनल्स। डिवाइसेस को अंदर तो वो पायनियर थे और उसमें भी रहेंगे, ठीक है, बट नाउ दे, और मैं आपको बताऊं कि देखें किसी भी कंट्री है उसकी एक सोच होती है कि उसकी जो लीडरशिप है वो ये सोचते हैं कि देखें जी, आप एक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो जापान इज स्टिल पायनियर, ठीक है, और यस। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बट उन देखें कोई भी एक मुल्क है वो कभी भी किसी एक चीज पे इन्हिसार नहीं करेगा, वो वक्त के साथ साथ अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप को चेंज करेगा कि जनाब एक चीज हमारे पास है, व्हाट नेक्स्ट, क्या हमें हम्म। मजीद करना चाहिए। तो जिस तरह वो अब ये चाहते हैं कि जी हर जगह हम, क्योंकि देखें राइट नाउ चाइना इज गिविंग वेरी टफ टाइम टू जापान, ठीक है, तो आप उनको पता है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल के अंदर या बाकी कुछ सेक्टर्स के अंदर हमें अच्छे रहने से फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी, तो हमें अपने आप को डाइवर्स करना पड़ेगा, हम्म। सब जगहों हम्म। पे अब जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो एक एग्जांपल है ये उसी तरफ एक इशारा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। नाउ अगेन आई वुड से कि कम्युनिकेशन की जहाँ पे बात हुई है तो जापानीज वर वेरी फार बिहाइंड इन satellites, but now linked to the communication they are actively working on the satellite technology as well। और मैं आपको मजे की बात बता दूं कि जापानीज एक मिनिस्टर थे, आई थिंक मिनिस्टर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, he said that soon Japan will be the Toyota in satellites। दैट्स ब्रेथ टेकिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। खैर इस इंटरनेट के ऊपर ही हम 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 4 मिलियन टाइम्स फास्टर देन द यूएस ब्रॉडबैंड। दिस इज समथिंग वी कैन से टेक अ बाउ। तो इसी वजह से नो डाउट जापान जो है 4 से 5 जो है वो डेकेड्स आगे है दूसरे ममालिक से। कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स एंड सीपीएस प्लेटफॉर्म्स, अगर कांडी डॉक्टर साहब इसके हवाले से भी थोड़ा बताएं कि ये कितना हेल्प आउट करेगा साइट की सेफ्टी और एफिशिएंसी को, ये मेजर जो है जापान का। देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि सेफ्टी, दूसरा जापान एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो काफ़ी अरसे से फेस कर रहा है कि देयर इज़ अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो टूल्स हैं, अगर हम इस टूल की पर्टिकुलर बात करें तो इसमें क्या है कि दे आर डेवलपिंग कि हमारे पास एक ऐसा टूल हो जहाँ पे हम रियल टाइम में एक से ज़्यादा मशीन्स को ऑपरेट करें, और कोशिश हमारी ये हो कि अभी तो हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको रिमोटली कंट्रोल करने के लिए एक बंदे को, एक बंदा है जो उसको रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, या एक बंदा एक से ज़ायद मशीनों को रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, बट इन द फ्यूचर दे प्लान टू मेक देम कंप्लीटली ऑटोनॉमस, ठीक है, और ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि इनको शायद फ्यूचर में रिमोट कंट्रोल की भी ज़रूरत ना पड़े, दे विल वर्क बाय देयर ओन। सो आई थिंक दिस स्टेप इज टुवर्ड्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, अगेन आई वुड से कि लाजमी सी बात है एक कामयाब माशरे में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि प्रॉब्लम तो चलो आ गई, नाउ हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये नहीं कहा कि जी ठीक है हमारे पास लोगों की कमी है तो अब हम क्या करें, या बाहर से, क्योंकि देखें जापानीज आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें, देखें उनका ये मानना है कि व्हेन द पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर हेयर, सो दे बिलीव, एंड
आई टोटली रिस्पेक्ट इट, क्योंकि वो चीज उनकी उस चीज को लेके है कि जनाब हमने अपने जो कहते हैं कि कल्चर को प्रिजर्व करना है। हम ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में जो इमिग्रेंट्स हों वो ज्यादा हों और जो लोकल लोग हैं वो कम रह जाए। तो ठीक है, मैं उस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ये जो इनका एक स्टेप है, ये उसी तरफ है कि जहां पे आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जहां पे आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है, आप उसके बजाय ऐसे सिस्टम्स तैयार करें जहां पे कम लोग हों या लोग ही ना हो। फ्यूचर में ये भी होगा कि लोग ही ना हो और वो मशीन्स जो है वो ऑपरेट करें। और इसमें एक मजे की चीज ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि जापान जो है वो एक अरसे दराज से रोबोटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा वो है, मतलब उसने अपना एक लोहा मनवाया है। तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग जिसको हम आईओटी कहते हैं, रोबोटिक्स और एआई, इन तीनों को ये कंबाइन करेंगे और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जो ऑटोनॉमस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक मेरे ख्याल में अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाते हैं तो इट विल नॉट ओनली वर्क इन जापान। I think it will also work in other countries where the people have the same problem. For example, South Korea. South Korea is also facing the same problem of low birth rate. उनकी भी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड फर्स्ट दे विल सॉल्व देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर दैट दे विल गो टू इंटरनेशनल। और यस, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम जापानीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि जापानीज प्रोडक्ट्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं हम्म। है। जापानीज प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज डेवलप्ड टू फर्स्ट solve the domestic problems, then to go overseas. तो अगर हमें फ्यूचर में ये ऑटोनॉमस रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे तो उससे पहले वो अच्छे खासे जापान के अंदर टेस्ट हो चुके हैं फिर वो जाते हैं। और एक रीजन इनका और ये भी है कि ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट की तरफ इसलिए नहीं जाते कि दे वांट टू मेक श्योर फर्स्ट कि हमने जो चीज बनाई है वो बिल्कुल सही हो और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे जाएं, ताकि ये है कि हमारी जो एक लेगेसी है वो मेंटेन रहे कि जी जापानीज प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। तो ऐसा ना हो कि जी कोई ऐसी चीज बन जाए जो अच्छी नहीं बनी तो आप डायरेक्टली अगर उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो फिर एक प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द सी वाटर डिसॉल्वेबल प्लास्टिक थ्योरी? ये क्या मामला है, इसके मुतालिक अगर काइंडली बताइए। ये तो बहुत ही कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप लग रहा है जापान की तरफ से। देखें, आपको पता है कि जिस तरह दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि लाजमी जो प्लास्टिक है वो सबसे बड़ा कॉज है पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हम्म। जो क्रिएट करता है। तो इन्होंने एक तरीका ये निकाला कि एक्चुअली जो प्लास्टिक है वो सी वाटर के अंदर खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा विद इन फ्यू आवर्स। और कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं ना कि जब आप नॉर्मली जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं या हम्म। आप इसको जमीन के अंदर जो है वो डंप भी करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि साल गुजर जाने के बाद वो जो माइक्रो प्लास्टिक के कुछ ज़रात होते हैं, छोटे छोटे हम्म। प्लास्टिक के कुछ ज़रात हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। सही है। वो ट्रू फिर दैट। क्या क्रिएट करते हैं कि वो जो है वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा जो इशू है, चले आपको पता है कि बहुत सारा कचरा जो है वो हमारा डंप साइट्स तक नहीं पहुंचता और अमूमन बहुत सारा कचरा जो है वो पानी में ही रह जाता है या समंदर के रास्ते जो है वो उसको डंप किया जाता है। तो उसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो जो हमारी मरीन के अंदर जो हमारी स्पीशीज है, ठीक है, उनके लिए फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका जो पानी है वो आलूदा हो जाता है। तो उसको इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया कि जो प्लास्टिक है वो खुद ब खुद ही जो है वो सी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा
और वो अपने पीछे कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स के ज़रात, जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो पीछे नहीं छोड़ेगा। और मेरे नज़दीक ये इस वक़्त मतलब एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड में हमारी जो पैकेजिंग होती है, या इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो भी सामान हम घर पे लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल तो है। तो ये फिर एक ऐसा प्लास्टिक तैयार किया गया है कि जब आप इसको पैकेजिंग में इस्तेमाल भी करेंगे, और कल को इस्तेमाल होने के बाद जब वो पैकेजिंग कचरा बन जाएगी और आपने जब उसको फेंकना है, तब वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो खुद ब खुद पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और नॉट ओनली इन जापान, मुझे तो लगता है कि ये अगर अब, क्योंकि ये अब टेस्टिंग फेज में जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट हो गई है, अब उसके बाद टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग जो अगर इसकी जो उन्होंने क्लेम किया है उस हिसाब से अगर वो टेस्टिंग को पास करता है, तो आई थिंक ये नीड तो सिर्फ जापान की नहीं, पूरी दुनिया की है। यस, तो ऑब्वियस। आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसको ऑन बोर्ड करेंगी, उनको लेंगी, और करना चाहिए भी। और देखें, मैं अगेन यही चीज बार बार रिपीट करूंगा कि जो आपकी एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो एक इनिशिएटिव लेती हैं, वहां पे वो इनिशिएटिव काम भी करता है, बट लैकिंग जो रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर या तो हम उन सिस्टम्स को खुद डेवलप करें। अगर हम डेवलप नहीं कर सकते तो हमें बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस चीज को लेके कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को तो सोचते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, लेकिन आई थिंक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। क्योंकि हम अगर जी रहे हैं तो इस एनवायरनमेंट की वजह से ही जी रहे हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ही बिल्कुल गंदा कर देंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू कम। देखिए, हमारा तो हम वही अगेन मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि आप हमेशा उन चीजों के बारे में सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें कि जी हमने जो जिंदगी गुजारनी है वो, आप वो अमल करके जाएं कि जिसका फायदा फ्यूचर जनरेशंस को। तो आई थिंक व्हाट जापान इज डूइंग इज रियली गुड, एंड आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी एक राय है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले, तो आई थिंक यूएन लेवल पे जाके, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जाके, फिर वो यूनाइटेड नेशन मेक श्योर करे कि इफ दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप, तो वो उसको फिर डिप्लॉय करवाए जहां तक वो डिप्लॉय करवा सकती है पूरी दुनिया में, या कम से कम उन एरियाज में तो डिप्लॉय करवाए जहां पे पोल्यूशन का ज्यादा प्रॉब्लम है, जहां पे एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा आलूदा हो रहा है। तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक किरदार यूनाइटेड नेशंस का भी होना चाहिए कि जब ऐसी कंट्रीज में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, तो वो फिर उन कंट्रीज के अंदर मेक श्योर करवाए कि वो इन डेवलपमेंट्स को या इन इन चीजों को अपनाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुंह जबानी बातें हों और वो ना करें। तो मेरे मेरे नजदीक जब यूनाइटेड नेशन एक बॉडी है, तो देर इज नो हार्म टू 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 डू इट। लेट्स सी। And I will make sure if I get a chance to present my thoughts to the United Nation in any of the way, I would definitely present my thoughts to United Nation regarding this matter. Yeah, it will be a great step, and we all will definitely will be right behind you. यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो ने ये क्या कमाल कर दिया, वुडन सैटेलाइट इंस्टेड ऑफ मेटल वन। ये क्या आप लोगों की अब निगाहें जो है वो स्पेस में क्या जिंदगी गुजारने का प्लान बना लिया यहाँ से निकल के? देखिए, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने तकरीबन 2 से 3 इंडस्ट्रीज यहाँ विजिट किए हैं जापान के अंदर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जापान एसडीजीज के ऊपर, जो आपके सोशल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, आई थिंक नॉट सोशल डेवलपमेंट गोल, आई थिंक सस्टेनेबल Sustainable, डेवलपमेंट yes. गोल्स। यस। तो उनको लेके ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। सो इफ यू गो टू अ स्मॉल इंडस्ट्री और इफ यू गो टू अ बिगर इंडस्ट्री, सो दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन द एसडीजीज। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि ये जो वुडन सैटेलाइट है,
हम्म। ये क्यों बनाई गई है कि ये क्या करेगी कि ये आपको पता है कि स्पेस के अंदर डेब्रीज जो होती हैं वो फॉर एग्जांपल अगर कोई एयरक्राफ्ट सॉरी कोई भी सैटेलाइट है उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसकी डेब्रीज जो है वो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं नॉट ओनली फॉर द एनवायरनमेंट बट फॉर द अदर सैटेलाइट्स एंड द अदर थिंग्स विच आर इन द स्पेस तो हम्म। ये बेसिकली वुडन बनाने का जो इनका मकसद है वो ये है कि एक तो हम सस्टेनेबिलिटी को लेके हैं हम्म। ठीक है दूसरा ये है कि आई थिंक इससे क्या होगा कि एक तो आपकी ड्यूरेबिलिटी और फंक्शन जो आपकी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है ना ये इसमें बहुत ज़्यादा कारामद होगा और मेरे नज़दीक आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि वुड को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं उसका नाम भूल गया हूँ आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ वुड जो इन्होंने इसमें इस्तेमाल की है आई थिंक इट्स कॉल्ड होनोकी टिम्बर Yes, it is called Honoki timber. यस Yes, you're right. यस यस तो उसका इस्तेमाल करने की भी ख़ास वजह ये है कि इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ वुड और इन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखा होगा कि हम कितना ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं तो आई थिंक इफ़ दे हैव चूजन दिस काइंड ऑफ वुड तो देयर कुड बी द रीज़न कि इसकी मतलब होता है ना कि सस्टेनेबिलिटी के भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं तो आई थिंक बाय चूजिंग दिस वुड दे हैव अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्टेनेबिलिटी कि हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्टेनेबिलिटी को अचीव करें और द अदर रीजन कुड बी द प्रैक्टिकल यूजेज क्योंकि देखें आप हर लकड़ी को तो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम्म। ये एक है कि हम उसका प्रैक्टिकल यूजेज भी देखें मद्देनजर रखें और साथ ही हम्म। साथ हम जो है वो सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखें तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि जितना यहाँ पे एसडी चीज का ख्याल रखा जाता है तो ये वाली जो इनोवेशन है इसको देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ अब जापान जो है वहां पे स्पेस में जाके घर बनाना चाह रहा है, रहना चाह रहा है और काम के लिए नई जगह ढूंढ लिया है। तो प्लेनेट अर्थ से कुछ लगता है ज्यादा अब खुश नहीं दिखाई दे रहे जापानीज। डिस इंफॉर्मेशन काउंटर मेजर्स प्लेटफॉर्म, ये ओ जो यस आप लोगों ने प्लान किया है, एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप, 2025 के फिस्कल ईयर में इसकी कंप्लीशन जो है वो प्रोजेक्टेड थी। इसकी क्या अपडेट्स है डॉक्टर साहब? देखें आपको पता है कि जैसा अब एआई जो है जितनी एआई ने जिद्दत इख्तियार की है तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल भी हैं और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल भी हैं तो यस। प्रॉब्लम क्या है कि अब इतने सारे एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको फेक न्यूज़ का जो है ना वो हम्म। एक आम बंदे के लिए ये फैसला करना कि ये रियल न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है तो इसी इसी तरह आपने देखा होगा कि फेसबुक के अंदर मैं उसको फेसबुक नहीं मैं मेटा कहूंगा क्योंकि अब वो मेटा के अंदर ही सारा काम हो रहा है तो इन्होंने भी अपना फैक्ट चेक का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था हम्म। तो बेसिकली वो प्रोग्राम लॉन्च करने का रीजन ही यही था कि ये जो फेक न्यूज़ है इसके इनको इनके साथ जरा लड़ा जाए और जो फैक्ट हम्म। पे जो सही बात है उसको जो है वो सामने लेके आया जाए तो आई थिंक हम्म। जो जो टाइम चल रहा है इस वक्त जितना एआई रिवॉल्व हो रहा है तो आई थिंक ये इस टाइम की मैं ये समझता हूँ कि सबको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसमें क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये डिडक्शन और एविडेंस मैपिंग ये इन दोनों को हम्म। कंबाइन कर रहे हैं ठीक है और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक स्पेशलाइज किस्म का लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहे हैं और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये नेशनल स्टैंडर्ड्स पे तैयार हो रहे हैं ठीक है जिससे क्या हो कि लोगों को डिजिटल ट्रस्ट भी हो और हम्म। इंफॉर्मेशन जो है उस पे उनको यकीन भी हो और ये फ्यूचर में आपकी जो मीडिया है
उसमें इस्तेमाल होगा, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होगा, पब्लिक सेफ्टी में इसका बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल एआई की वजह से कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो फैल जाती है जो जिसका दूर-दूर तक कोई सर और पाँव नहीं है, और वो लोगों के अंदर अगर एक पैनिक क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल जापान के अंदर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? अब अगर आप एआई जनरेटेड एक अर्थक्वेक से रिलेटेड फेक न्यूज़ बना देंगे, तो अब आप उसका इम्पैक्ट देखें कि सोशली उसका इम्पैक्ट लोगों पे कितना ज़्यादा पड़ेगा। लोग जो हैं वो पैनिक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब तो इसलिए मेरे ख्याल में जापान ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई एम श्योर कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स, क्योंकि पिछले दिनों मैं आपको बताऊं कि बहुत एक खबर चली थी कि 6th ऑफ जुलाई को मेगा अर्थक्वेक आएगा जापान में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 जुलाई, ठीक है? तो वो उस हवाले से बहुत सारी फेक न्यूज़, बहुत सारी एआई जनरेटेड वीडियोस फ्लोट हुई, और वो इतनी ज़्यादा हुई कि हम खुद परेशान हो गए कि जनाब ये अब रियल है या ये फेक है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को आके उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया। आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो अभी रिसेंटली जो टूरिस्ट जापान में आ रहा था वो हांगकांग और चाइना वाले रूट से बहुत आता है। तो हांगकांग के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द फ्लाइट्स वर एम्प्टी, or just because of these fake news. दिस फेक न्यूज। तो Oh, oh. उन्होंने आके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें ऐसा कुछ नहीं है। यस, बेसिकली ये मांगा इनकी एक कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, तो इनकी एक खातून थी जिन्होंने ये प्रिडिक्शन आई थिंक इन द ईयर 1998 में की थी। तो उन्होंने 2011 के सुनामी की प्रिडिक्शन की थी विच वाज ये बाबा 100% वांगा तो एक्यूरेट। नहीं थी? बाबा वांगा, ये वो तो नहीं तो थी? इनका शायद नाम ऐसा ही है, आई एम नॉट श्योर 100%। तो ये 1998 में जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी, तो सुनामी को लेके इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट थी। एग्जैक्टली, सही है। एग्जैक्टली। और उसी के अंदर उन्होंने ये जुलाई 6 की भी प्रिडिक्शन की हुई थी। देखें, एक चीज तो है कि अब जिस तरह जापान के अंदर ना ये जो एक ट्रेंच है, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है जापान को। ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं जो एक जगह आके मिलती हैं, और उसी के ऊपर जापान जो है वो है, उसकी जो ज्योग्राफी है वो वहीं पे। अब राइट। प्रॉब्लम क्या है कि ननकाई जिसको कहा जाता है अर्थक्वेक, मेगा अर्थक्वेक, इसकी प्रिडिक्शंस भी हैं, और अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द जापानीज गवर्नमेंट इट इज लाइकली टू पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। ओह। क्योंकि है पॉसिबिलिटी उसकी है, लेकिन बिल्कुल कोई एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि कब है। लेकिन दे आर रेडी, दे हैव टेकन ऑल द मेजर्स कि अगर वो आता है तो हमने किस तरह उससे बचना है, किस तरह लोगों को इवैक्यूएट करना है, ठीक है, और काम करना है। तो आई थिंक उसी हवाले से ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, या जिसकी तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं कि किस तरह फेक न्यूज़ जो है उसको टैकल किया जाए। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड अगेन आई थिंक दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर जापान, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में अब एआई जो है वो सिर्फ जापान में नहीं आया, एआई पूरी दुनिया में आया। तो एआई का जो बूम है, अल्लाह खैर करे। यू नो देयर आर ओनली द गुड साइड्स एंड द बैड साइड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो अल्लाह खैर करे, दुआ तो यही है कि आमीन। टेक्नोलॉजी जो है वो सही हाथों में ही रहे और इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल ना हो। True that, and we all pray to Almighty Allah that जापान और उसके जितने लोग हैं इन कैलामिटीज से महफूज रहें, पूरी दुनिया में हम लोग। डॉक्टर शहबाज साहब, thank you very much for your इंशाल्लाह। precious time and your presence and wonderful answers to all the queries and questions. माय प्लेजर, माय प्लेजर। Hoping to catch you up in near future as well. God bless you. Take care. थैंक यू, थैंक